Hello, good morning everybody. Now let us study some idioms. Heading IDIOMS. Idioms bracketed phrases. PHRASES. IDIOMS bracketed phrases. PHRASES. And the underline. Very important. All highly educated people using these idioms and talking while when they are talking with the highly qualified people. So it is useful for you. Example number 1, land of Nod. LAND, land of Nod, NOD. Sleep, Sote. Nidra, Urakka, Malayalam. Once again, LAND, land of Nod. Urakkam, नींद में जाते हैं. बेटा या माँ नींद में गया खाना खाने को बोलता है ना. Example, the child has gone to the land of Nod. Example, the child has gone to the land of Nod. बच्चा सोने को गए उറങ്ങാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. बच्चा सोने को गए मैंने ഉറക്കത്തിലാണ്. Next one, romp in home. ROMP, romp, IN, in home, HOME. Win easily. Easy success हो जाएगा. Once again, ROMP, romp, IN, in home, HOME. Meaning win easily, एकदम easy विजय हो जाएगा. Example, BJP can romp in home by the next election. BJP can romp in home by the next election. समझा ना. अगले इलेक्शन में बीजेपी को इसी इलेक्शन विन सकता हो. नेक्स्ट वन, मॉर्टल अगोनी. MORTAL, मॉर्टल अगोनी. AGONY माने डेथ, मृत्यु. मीनिंग डेथ या मृत्यु. वंस अगेन, मॉर्टल अगोनी. MORTAL, AGONY. मॉर्टल अगोनी मीन्स डेथ, मृत्यु, मरणम मलयालത്തിൽ. Example, mortal agony is knocking the door of the patient. वो पेशेंट का नज़दीक आ रहा है मृत्यु मतलब. Mortal agony is knocking at the door of the patient. Once again, mortal agony is knocking, KNOCKING, knocking the door of the patient. और पेशेंट का पर डेथ आ रहा है मतलब. Once again, mortal agony is knocking, KNOCKING, knocking the door of the patient. That's a dead man's shoes. मरेला आदमी का प्रॉपर्टी. मैंने मरेला आदमी का दौलत. DAD, dead man's shoes, SHOES. DAD, dead man's, apostrophe S, dead man's shoes, SHOES, shoes. मीनिंग मर गए आदमी का दौलत या प्रॉपर्टी. एग्जाम्पल, मर गए आदमी का जो प्रॉपर्टी कोई नहीं है, बहुत साल के बाद ऑक्शन करते हैं घर में. ऑक्शन मैंने 10, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 30 लाख ऐसा करोड़ में ऑक्शन को कोई नहीं लेता है. सो लेने वाले बहुत आ जाते हैं. एग्जाम्पल, द डिमांड्स शो आर बीइंग ऑक्शनड इन द म्युनिसिपल ऑफिस. The dead man's shoes are being auctioned, AUCTION, auctioned in the municipal office. Once again, the dead man's shoes are being auctioned in the municipal market. Auction spelling AUCTIONED. मरला आदमी को प्रॉपर्टी दौलत म्यूनसिपल ऑफिस में ऑक्शन कर रहा है. Once again, that man's shoes are being auctioned in the municipal market. Next one, beyond the veil. BEYOND, beyond the veil, VIL. मैंने the unknown state of after the death. मरने के बाद कहाँ जाते हैं वो स्टेट को, वो परिस्थिति को बोलते हैं beyond the veil. स्पेलिंग BEYOND, beyond the veil, VEIL.
मैंने मरने के बाद किसको मालूम नहीं, कोई स्वर्ग में जाते कोई नरक में जाते, किसको मालूम नहीं, वो विश्वास है। सो बोलते हैं इंग्लिश में द अननोन स्टेट ऑफ आफ्टर डेथ, द अननोन स्टेट ऑफ आफ्टर डेथ को बोलते हैं बियॉन्ड द वेल। फर्स्ट अगेन BYOND, बियॉन्ड द वेल, VAL, द अननोन स्टेट ऑफ आफ्टर डेथ. നെക്സ്റ്റ് വൺ മലയാളത്തിൽ മരണശേഷം ആർക്കറിയപ്പെടാത്ത അവസ്ഥ. ഇനി മലയാളം മരണശേഷം ആർക്കറിയപ്പെടാത്ത അവസ്ഥയെ ബിയോണ്ട് ദ വെയിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഹെൻ പെക്ഡ് ഹസ്ബൻഡ്, HEN-PECKD, हेन पैक्ड हस्बैंड, HUSBAND. मैंने कोई हस्बैंड लोग औरत जो बोलते सुन के डर के, ने औरत का डर है, डरते औरत कोई सुनता नहीं तो उसको डर लगता है. इस अंडर द इम्प्रेशन ऑफ वाइफ जो बोलते उसको सुनना पड़ता है. ऐसा हस्बैंड को क्या बोलता है, HEN पैक्ड, PECKD, हेन पैक्ड हस्बैंड. ഭാര്യ ഭാര്യ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്ന അനുസരിച്ച് सुनने वाला हस्बैंड. जो कोई हस्बैंड है ना, जो वाइफ जो बोलते हैं वो सुनते हैं, नहीं तो वो उसको दमदाटी देते हैं. इसको बोलते हैं हैन पैक्ड हस्बैंड. ऐसा कोई है? आप है? मैं तो नहीं है. मैं जो बोलता है मेरा और सुनता है. HEN हैन पैक्ड, PECKD, हैन पैक्ड हस्बैंड. नेक्स्ट वन awards are counted, HOURSARECOUNTD. मैंने मृत्यु നഞ്ചിക്കാരൻ. മലയാളം മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ. മലയാളം മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവേഴ്സ് ആർ കൗണ്ടഡ്, സ്പെല്ലിംഗ് HOURS, अवेयर्स आर काउंटेड, COUNTD. मृत्यु एकदम नज़दीक आ रहा है. हॉस्पिटल में डॉक्टर नर्स को बोलता है, सिस्टर ऑन बेड नंबर 7 द पेशेंट्स अवेयर्स आर काउंटेड. बेड नंबर 7 का जो पेशेंट का मृत्यु आ रहा है, मतलब वंस अगेन अवेयर्स आर काउंटेड, HOURSARE, अवेयर्स आर काउंटेड, COUNTD. मृत्यु आ रहा है, एकदम नज़दीक आ रहा है. अवेयर्स आर काउंटेड, COUNTD. Example, my grandmother is very critical condition, comma, her hours are counted. I'm saying my grandmother is very critical condition, comma, so her hours are counted. हमारा ग्रैंड मदर एकदम क्रिटिकल है, अभी मरने के लिए थोड़ा टाइम बाकी है, मैंने एकदम या 1 आवर या 2 आवर या 3 आवर्स. हॉस्पिटल डॉक्टर नर्स को बोलता है, तो बाजू को रिलेटिव मालूम होना चाहिए, सीक्रेटली वेरी स्लोली बोलता है, हेलो नर्स, ऑन बेड नंबर 7 द पेशेंट्स अवेयर्स आर काउंटेड, यू इन्फॉर्म द रिलेटिव. जो बनते हैं रिलेटिव से बताओ, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, इधर इधर बताने का बताओ, मतलब. नेक्स्ट वन, अपना कोई बीच में आता है ना, अपना कोई पर्सनल काम में कोई ऐसा आदत रहते हैं, बुरी आदत, अपने बीच में एड्रेस करने को आता है, इंटरफेयर करता है, सब क्यों टाइम बोलने का थोड़ा गुस्सा से बोलता है. प्लीज़ डोंट फॉक योर नॉस इनटू माय पर्सनल मैटर्स. मेरा जो कोई बात में तुमको आने की जरूरत नहीं, तुमको बोला ही नहीं, हमको बीच में आने का नहीं, ऐसा बोलता है ना. മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സെക്കൻഡ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് പോക്ക്, poke your nose, NOSE, into my personal matters. Don't involve my personal matters. Once again, please don't poke your nose, NOSE, into my personal matters. मेरा जो कुछ പേഴ്സണൽ മാറ്റർ में आपको बीच में आने को जरूरत नहीं. മലയാളത്തിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ. नेक्स्ट फॉक्स, फॉक्स वो जानवर का नाम है जंगल का, लेकिन उधर अलग अर्थ में. इंग्लिश लोग फॉक्स, डोंगी, कैट, कोई जंतु लोग का नाम से एलिफेंट, कोई बात यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल, फॉक्स वेरी टफ सब्जेक्ट, क्वेश्चन वेरी टफ रहते हैं, आंसर करने को मुश्किल है. फॉक्स मीन्स वेरी टफ टू फाइंड आंसर.
उत्तर उत्तर उसको उत्तर मालूम होने के लिए बहुत मुश्किल है स्टूडेंट्स को या कोई भी एक्सपर्ट को भी। ऐसा सब्जेक्ट को फॉक्स बोलते हैं। एपॉइस फॉक्स मीनिंग वेरी टफ सब्जेक्ट टू फाइंड आंसर। इसको उत्तर मिलने के लिए बहुत सोचना पड़ता है, दिमाग खराब हो जाता है। एग्जाम्पल, कोई के एंट्रेंस एग्जाम का जो क्वेश्चन रहता है ना, दिमाग खराब होता है स्टूडेंट्स का। एग्जाम्पल, some of the question of entrance examinations are find fox, even an expert cannot find out the answer. Example, some of the question of the entrance examination, comma, find fox, even an expert can't find the answer. Expert को भी इसका आंसर पकड़ने को नहीं आता। Once again, some of the question of the entrance examinations find fox, even an expert cannot find answer. Okay. At Lucent, AT at LOOC, at a Lucent, AT at a LOOC, Lucent मैंने कोई नौकरी में बैठा है, नौकरी नहीं, घर में बैठा है बहुत साल से, नहीं या बहुत महीने से। मलयालम इंग्लिश, विदाउट एनी जॉब और प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, नौकरी वगैरह नहीं बैठा रहते। वंस अगेन, एट ए लूज एंड, एट ए लूज LOC, लूज एंड END मैंने विदाउट एनी एम्प्लॉयमेंट और नौकरी, ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മലയാളം. എക്സാമ്പിൾ, മൈ ബ്രദർ ഈസ് അറ്റ് ദ ലൂസ് എൻഡ് ഫോർ ദ लास्ट 6 months. मेरा भाई को 6 महीने से कोई नौकरी नहीं बैठा है. एग्जाम्पल वंस अगेन, माई ब्रदर इज एट द लूज एंड फॉर द लास्ट 6 months. पिछले 6 महीने से मेरा भाई को नौकरी कुछ नहीं है, ऐसा बैठा रहते. नेक्स्ट वन, कोई भी आदमी को कोई का अच्छा काम, सब काम आता है, ऐसा काम को क्या बोलते हैं मालूम है? ऐसा लोगों को चीप कुक एंड बॉटल वॉशर, सब काम करने को आता है. चीप CHIEF, चीप कुक COK, കുക്ക് ആൻഡ് ബോട്ടിൽ വാഷർ, എല്ലാ ജോലിയും ചെയ്യാനുള്ള. വൺസ് അഗെയിൻ, ചീപ്പ് CHIEF, ചീപ്പ് കുക്ക് COK, കുക്ക് ആൻഡ് बॉटल वाशर BOTTL, बॉटल वाशर WASHER. मैंने कोई का ऐसा सब काम करने का आता है. ये 2 ने 4 ने ऐसा कोई भी काम कर सकते, कोई भी. मेरे को पहले स्टूडेंट था, MBA खेती करने को आता है, टाइपिंग आता है, कंप्यूटर आता है, झाड़ के चढ़ के ये नाली निकालते हैं, खेती में काम करते हैं, खाना पकाते हैं, हर भाजी बनाने को आता है, मटन बनाने को आता है, टेस्टी फूड बनाने को आता है, ड्राइविंग आता है, तो कभी कभी वो ऑटो चलाते हैं. मैंने ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं? चीप कुक एंड बॉटल वॉशर है कोई. वंस अगेन, चीप कुक CHIEF, चीप कुक COK, कुक एंड बॉटल वाशर BOTTL WASHER, हर काम जानने वाला. ओके, ऑल दिस थिंग्स, स्टडी ऑल दिस थिंग्स every day, at least 3 sentences, study by heart. When you talk English, you can utilize it. Okay? Have a nice day. May God bless you.